I request all the participants, if they are outside, to please come and sit in the auditorium. Good morning, friends. I am Prasanna Acharya, 2016 batch IS officer of Egmont Cadre, presently posted as Director Higher and Technical Education, Government of Mizoram. On behalf of LAPSNA and trainees of in-service training on building infrastructure for a Vikasit Bharat, it is my great pleasure to extend a warm welcome to Sri Santosh Kumar Yadav sir, Chairperson, National Highway Authority of India. Santosh sir is a 1995 batch IS officer from Uttar Pradesh cadre. Sir has done BTech from Civil Engineering from IIT Roorkee and MTech from IIT Delhi. Sir has vast administrative experience in UP administration as well as Government of India. Sir is presently serving, as I told you, in Government of India as Chairperson NHIA since 2022. Prior to that, he also served as Additional Secretary, School Education and Literacy Department, Government of India. Sir has served in various positions in UP administration like MD, Noida Metro Rail Corporation, Secretary Women and Child Development, Secretary Industry and Infrastructure, and Executive Director Udyog Bandhu. In 2019, Sir was awarded Scotch Award Governance Gold. We are privileged to have him grace this session with his presence. Let us all come together to engage in meaningful discussions and insights under his guidance. Welcome, Santosh sir, to this esteemed gathering. Since we have to conclude this session sharp by 11:40, I would request sir to continue till say 11:25, and maybe 10 minutes we'll have interactive session like questions, clarifications, etc., followed by vote of thanks. Sir. My dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm seeing lots of officers from infrastructure ministries. Friends, when you come to academy का हर कोना आपसे बात करता है, because you know, initial years we spent in the academy. So when I came to this place, I was so nostalgic. I mean, I could see, I was looking for faces जो मुझे चाय पिलाते थे. I could find one of them यार. Today I'm going to speak about National Highway building journey, which MORTH, the acronym MORTH will be of the Ministry of Road Transport Highways. I'll keep on telling the word MORTH. And the body, National Highway Authority, of which I am mandated to head. Friends, broadly, अगर ये पूछा जाए कि नेशनल हाईवे की जर्नी, I'll start with what is the importance of national highway to the economy of country, then what all involves development life cycle of a highway. First you plan the network, then you prepare the project, execute the project, monetize the project. Then parallelly we have been mandated for allied infrastructure like multimodal logistics parks, ropeways. ये भी हमको NHAI को काम भारत सरकार ने दे दिया है. Because you guys are present over here from the states, बाद में मैं आपसे गुजारिश करूँगा. I'll make a request here, how you guys can contribute in increasing the pace of construction of national highways. So, friends, national highway, infrastructure contributes to economic prosperity of any nation. और economic prosperity आ जाएगी तो it translate into quality of life of citizens. So ये कहा ये जाता है, if you spend a rupee in infrastructure, तो उसका multiplier effect 2.5 times है.
we are an aspirational nation. So we have set our target. By 2047, we will be the 30 trillion, one of the developed economy of the world. So इसके लिए जरूरी है, you know, to achieve this exponential economic GDP, you will need infrastructure. So you will, and infrastructure will be supported by development. So Government of India does realize its importance. तो भारत सरकार ने क्या किया? So in last decade, if you see the capital investment in infrastructure, they have done it multifold. First, see right side. So Government of India has declared a national infrastructure pipeline, जिसका total expenditure is 174 lakh crore. It has two components, transport and non-transport. So let me switch to left side now. Left side, if you see, freight movement country में होता कैसे है? 71% of freight moves through roads. Come over, if you come for roads, come for passengers, the proportion is the same. So, friends, of infrastructure, road will always be a very critical component. Government does realize it. Now come to again right side. So if you see blue portion, 37% is transport. Of 37%, bulk 50% they have allotted to road department for development of road. If translated in money terms, it will be 32 lakh crore rupees. So इतना पैसा अगर सरकार ने इसके लिए एलोकेट किया है, इट गिव्स डिविडेंड टू द गवर्नमेंट यार. आप देखें डिकेड्स में जो अवार्ड में जिस पेस पर रोड को हम लोग सैंक्शन करते हैं, यू नो, ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड यार. द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन अ डिकेड almost 2.5 times. You know, you see the decade 2004 to 14, 11 किलोमीटर सड़क डेली बनाते थे हम लोग. द डिकेड जस्ट गॉन बाई 26 किलोमीटर रोड्स पर डे बनाते थे. इस साल 38 किलोमीटर रोड पर डे बनाएंगे हम लोग, एंड वी विल अचीव इट. सो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल बेसिकली इट हैज़ 3 स्टेजेस हैं प्राइमरली. किसी भी प्रोग्राम को आप कंसेप्चुलाइज करते हो, आप यू फर्स्ट कंसेप्चुलाइज द प्रोग्राम, यू डिसाइड कंट्री में नेटवर्क कितना होगा. वंस यू डिसाइड द नेटवर्क, देन उस पर कॉरिडोर्स आते हैं. पूरी कंट्री, आपने कहा दिल्ली मुंबई एक कॉरिडोर होगा. वंस यू डिसाइड द कॉरिडोर्स, उस कॉरिडोर को आप छोटे छोटे पार्सल्स में बांटते हैं. आई विल कम टू द निटी-ग्रिटी वाई. छोटे छोटे पार्सल्स में बांटते हैं. They are called project. So first stage is program. I'll come in detail one by one to each and every aspect of it. तो एक बार आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसकी DPR बनाते हो, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. देन यू सेलेक्ट द मोड, बाय विच मोड, फाइनेंसिंग मोड. देन यू अप्रूव द प्रोजेक्ट, यू टेंडर इट आउट, यू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट. देन once the project is constructed, it comes in operation and maintenance phase. You know, but I'll come to it later. जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन हम लोग बना देते हैं उसको मोनेटाइज करते हैं. वी गेट मनी आउट ऑफ इट, वी सेल द प्रोजेक्ट. वाई? जितना हाईवे बनाना है उसके लिए पैसा चाहिए, एंड द बजट अलोन कैनॉट सफाइस. सो वी मोनेटाइज अवर रोड, वी गेट मनी, सो दैट नेक्स्ट वेव ऑफ डेवलपमेंट फॉर दिस वी कैन गार्नर द मनी. तो नेटवर्क प्लान कैसे करते हैं? सो नेटवर्क प्लान बेसिकली क्या है? जो नेटवर्क प्लानिंग की प्रोसेस है इन द कंट्री, यू नो, जैसे आप वक्त के साथ सीखते हो, सो वी ऑल्सो केप्ट ऑन लर्निंग विद टाइम. बट द प्लानिंग इज बेसिकली वेरी साइंटिफिक एंड डाटा ड्रिवन. इनिशियल फेजेज जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में, तो हम लोग क्या करते थे, ज़्यादातर प्लानिंग किया करते थे प्रोजेक्ट लेवल पर. एक मैं एग्जांपल के थ्रू तीनों स्टेज दिखाऊंगा आपको. दैट
मुंबई टू कोलकाता। तो इनिशियल प्लानिंग हम लोग हुआ करती थी, प्रोजेक्ट बनाते थे, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में डिमांड आ गया, ट्रैफिक बहुत है, तो उसको 4 लेन कर दो, कहीं और ज़्यादा ट्रैफिक से उस एरिया में 6 लेन कर दो। बट इस फेज़ में भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर बनाए गए, वो कॉरिडोर अप्रोच पर थे। उसने दैट हेल्प अस इन सेकेंड फेज। सो कैन यू शो द, सो आई एम टेकिंग यू थ्रू एग्जाम्पल मुंबई टू कोलकाता। अब मुंबई टू कोलकाता में देखिए, कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ी कैप है वहाँ 2 लेन हो गया, जहाँ थोड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह रही होंगी वहाँ 4 लेन हो गया, कहीं 6 लेन हो गया। एंड द रिजल्ट इज एज ए कम्यूटर इफ यू आर ट्रेवलिंग, 4 लेन से सीधे 2 लेन पे आ गए, तो क्या होगा? एल बी कंजेशन, you know, experience will not be good. And ultimately, what is it? What nation is aspiring for? Logistics efficiency यार, ट्रक कितना चलता है एक दिन में, तो वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो फिर देन आजकल करेंटली टिल नाउ व्हेन वी लर्न इट, देन केम टू कॉरिडोर बेस्ड प्लानिंग। इसको गो बैक प्लीज, गो बैक प्लीज। सो इन कॉरिडोर बेस्ड प्लानिंग व्हाट वी डिड, हम लोगों ने कहा कि यार लेट अस स्टडी कि देश में कितना रोड नेटवर्क जरूरत होगी। तो एक लॉजिस्टिक्स एनहांसमेंट एंड एफिशिएंसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक स्टडी कराई गई, तो ये देखा गया कि अगर 65,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड बना दें तो उस पर अराउंड 80% ऑफ ट्रैफिक विल मूव इन द कंट्री, राइट। तो तब उसको क्या नाम दिया गया? द नेम गिवन टू इट वाज भारतमाला। नॉर्मली जो आप सुनते हो भारतमाला, सो भारतमाला इज दैट 65। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि इसका फर्स्ट फेज भारतमाला का 35,000 किलोमीटर का होगा। और वो जो भारतमाला प्रोग्राम बनाया गया उसमें राज्यों से कंसल्टेशन किया गया। वी कंसल्टेड विद स्टेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, देन वी केम अप विद कि यार जो है कंट्री में 25 हाई स्पीड कॉरिडोर्स की ज़रूरत है, 25 हाई स्पीड कॉरिडोर्स की ज़रूरत है, एंड द ऑफ 10,000 किलोमीटर्स। और उसमें ये भी देखा गया इन 65,000 किलोमीटर्स में कि देर आर सम प्लेसेस विच आर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उनके लिए अलग से अलाइनमेंट देना होगा। सो let me अगेन टेक यू थ्रू एग्जाम्पल। तो कॉरिडोर अप्रोच कह रहा अगेन सेम मुंबई कोलकाता। मुंबई कोलकाता का आप देखें तो मुंबई टू नागपुर 6 लेन बना दी, नागपुर से कोलकाता 4 लेन। बट इसी अभी भी इसमें कमी क्या है? यू नो, रोड इन साइलो। जैसे ऐसा लगता है कि कोई कायनात रोड के अलावा है ही नहीं। भाई दुनिया रोड के अदर लेफ्ट राइट भी है यार। वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर यार, बट यार अगल बगल के जो प्लेसेज हैं वी आर नॉट कनेक्टिंग इट टू। सो नेक्स्ट प्लीज, गो बैक प्लीज। सो देन केम द, सो 1 and 2 इन 2 फेजेस ने दे क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग बैकबोन कि फ्यूचर में डेवलपमेंट क्या होगा, किस तरह से होगा। देन केम द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। सो जिसके बारे में प्रेजेंट जो आप देखेंगे मास्टर प्लान ऑफ विजन 2047, सो इसके बारे में डिटेल में आई विल टेल यू अबाउट इट व्हाट, एंड आई एम ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन यू विल सो प्राउड ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इसमें हम लोग हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाएंगे, साथ ही साथ मल्टी मोडल रोपवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, इनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी, फीडर रूट्स, प्लेसेज ऑफ इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज़, इन सबको कनेक्टिविटी देंगे। एंड द कार्डिनल प्रिंसिपल विल बी, लेट मी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अगेन if you see the what will be again the same Mumbai Kolkata corridor. So what we are doing, अमरावती में टूरिज्म बहुत होता है, सो वी विल गिव ए स्पर टू अमरावती। बिरकोनी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, SEZs, विल कनेक्ट देम। सो इट विल बी इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्लीज। सो ये 2000 सॉरी स्लाइड मिस हो गया, सॉरी।
Just a second. So it's not over there. Somehow it missed it. So क्या करेंगे हम? I'll just take a second. Come next. Go back, please. Go back to where you are. Go back. So let's see. Let's do this only. तो अगर NHDP और भारतमाला को अगर हम दोनों को मिला लेंगे, सी NHDP से रोड नेटवर्क ये होगा. Once you superimpose it to भारतमाला, network will be like this. यार बहुत कुछ स्लाइडें मिस हो गई हैं. हाँ, सॉरी. सो बट देन इसी अगर आप इसको देखें, यू सी वाइट पैचेस. वाइट एरिया कहाँ है? सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट. रोड ही नहीं है, हाई स्पीड रोड नहीं है. सो नेशन कैन नॉट डेवलप यार. नेशन कैन नॉट डेवलप यार. जो रोड, जो एरिया डेवलप होते जा रहे हैं उनको डेवलप होते दें, और जो नहीं है उनको नहीं ना होने दें. सो अगर इसको यू नो व्हाट वी ट्राई टू डू कि यार दुनिया में हम कहाँ स्टैंड करते हैं. भारतमाला विच विल बी फेज 1 विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर. उसके बाद इन टर्म्स ऑफ कॉरिडोर डेंसिटी, इफ यू सी वे वी आर लोएस्ट क्वाड्रेंट. भारतमाला नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के बाद भी 2026-27 के बाद भी ये स्थिति रहेगी. इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस विल बी एट लोएस्ट क्वाड्रेंट. और इसको अगर आप स्पीड में ट्रैवल करें, करें तो अगर लुक फॉर चाइना. चाइना में अगर एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ये पोस्ट भारतमाला अपनी 47 ही होगी यार. इतना करने के बाद भी. सो व्हाट वी सेड, वी डिजाइन, वी सेड कि नो, इससे काम नहीं चलेगा. लेट्स डिजाइन ए विजन ऑफ रोड नेटवर्क मास्टर प्लान. So this vision had 3 cardinal principles. Primarily, logistics efficiency has to improve. यार, nation has to move. Second, regional and social equity. Aspirational district को भी cater करना है. The regions which don't have road, they have to have roads. Then strategic, the areas, border areas, areas of importance, उनको भी road देनी है. So post, you know, if you ask us, if you once this master plan is completed, आप देश में कहीं भी खड़े रहेंगे, वेर एवर यू आर इन द कंट्री, आपको 100 से 150 किलोमीटर के बीच में एक हाई स्पीड कॉरिडोर मिलेगा. देश में कहीं खड़े रहेंगे, 13 to 15 किलोमीटर्स में आपको नेशनल हाईवे मिलेगी. विल बी अमंग टॉप 10 कंट्रीज इन G20. देन इक्विटेबल एक्सेस टू नेशनल हाईवे होगा. एंड द एक्सपीरियंस, ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑन दिस रोड विल एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास यार. यू विल सी अवर वे साइड एमिनिटीज यार. दे विल बी बेटर देन बेस्ट ऑफ बेस्ट इन द वर्ल्ड. And finally, it should lead to reduction in logistics cost. So this is what. तो I mean, ये अब बेसिकली विजन तो बना लिया, लेकिन ये विजन अचीव कैसे हो, हाउ विल डेवलप दैट डे. सो आई एम बिट टेक्निकल, आई विल गो इन बिट निटिग्रिटी, जस्ट बियर मी फॉर 5 minutes. सो क्या होगा, देयर आर द 5 steps इन्वॉल्व इन इट. आई विल कम इन डिटेल बट ब्रॉडली बता दूँ. फर्स्ट स्टेज में व्हाट कि करेंटली कंट्री में डिमांड क्या है. 1, नेक्स्ट 25 years डिमांड मूव कैसे करेगी, इसको प्रोजेक्ट कर दिया. तो 1 + 2 गिव्स द डिमांड. थर्ड, कंट्री में इस समय सप्लाई क्या है, मतलब कितनी रोड्स हैं और कितनी रोड्स, आई बिलीव यू बीच बीच में हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा होगा. गेटिंग या. सो कितनी नेक्स्ट कितनी स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे प्लान्ड है, दैट विल गिव मी सप्लाई. डिमांड को सप्लाई से माइनस कर दूंगा मैं और उसको अपने फ्रेट फ्लो मॉडल पर डाल दूंगा, तो मुझे कंजेशन मिल जाएगा. अगर कंजेशन मिल जाएगा तो फिर मैं आई विल गेट टू नो कि मुझे नेटवर्क कैसे प्रायोरिटाइज करना है. सो लेट मी कम 1 by 1 टू इट. सो व्हाट वी डिड, यू नो, GST नेटवर्क है, ई वे बिल जनरेट होता है, ट्रक्स मूव करते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, GSTN से डाटा लिया कि फ्रेट कहाँ से कहाँ मूव करता है. यू नो,
द कमोडिटीज़, हाउस होल्ड कमोडिटीज़, मशीनरीज, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स किस तरह मूव करते हैं। तो देर आर 1000 टोल्स, NHAI के 1000 टोल हैं, उस टोल पर NPCI से फास्टैग डाटा लिया। देन पैसेंजर मूवमेंट्स अगेन NPCI से आ गया। जो ये डाटा आया, इस डाटा को वी वैलिडेटेड एट 5100 पॉइंट्स इन द कंट्री, फिजिकल सर्वे करके इसको वैलिडेट किया डाटा। सो दिस गेव अस अ करंट डिमांड, इस समय डिमांड है क्या। देन व्हाट वी डिड, ऑल 780 डिस्ट्रिक्ट्स का जो GDP है उसको बहुत क्लोजली उसको एनालाइज किया। हाउ इट कम्स, यू नो, नेशनल GDP नीति आयोग बताता है देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ऑफ नेशनल GDP विद स्टेट GDPs। एक रेग्रेशन मॉडल से स्टेट की GDP आती है, हर बार देखते हैं इसकी GDP इतनी है। उसी रेग्रेशन मॉडल को यूज़ करते हुए दे सेड कि यस, उस स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस तरह मूव करेंगे। देन जो डिस्ट्रिक्ट की GDP फोरकास्ट हो गई। सो व्हाट वी डिड कि कंट्री में कितने इकोनॉमिक एरियाज नोड्स प्लान्ड हैं अभी और फ्यूचर में, देयर आर 1600। उन 1600 जो प्लान्ड इकोनॉमिक नोड्स हैं उनमें मूवमेंट कैसे होगा उसको उस पर मैप कर दिया। देन भी देखा टिपिकली इलास्टिसिटी वो क्या है, डिमांड क्या है। अगर 1% अगर GDP बढ़ता है तो फ्रेट जो मूवमेंट 1.07 हो जाता है। बट द पैसेंजर रोड, आई मीन दिस आई एम सेइंग थ्रू रोड ओनली, एंड रोड मूवमेंट्स 0.4 होता है। यू नो वाई 0.4, यार जैसे ही पैसा आता है लोगों के पास, यू नो, एयरपोर्ट से एयर से जाना शुरू कर देता है। यू नो, वंदे मातरम ट्रेन से आ गई हैं, सो बहुत सारे मीन्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो इलास्टिसिटी इज 0.4। देन व्हाट वी डिड, क्योंकि अगर इसी 1 पे ही चले जाते तो जैसे आई टोल्ड यू, साउथ और वो सब एरिया उन्हीं में ही सारा प्रोजेक्शन सारा टू, जैसे UPSC में व्हाट हैपन्स, लाइक आई टुक मैथमेटिक्स, 600 में 600 करके आया था दोस्त, 1200 में 1200 करके आया था, 402 नंबर दिए उन्होंने दोनों में, स्केलिंग फैक्टर लगा दिया उसको उन्होंने। एंड गुड द डेट यार, अगर 1280 में मिल जाते तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी यार। सो व्हाट वी डिड स्केलिंग फैक्टर। इस सेट की जो एरिया, जो एस्पिरेशनल एरियाज हैं उसमें लेट अस एज्यूम आर्टिफिशियली हायर ग्रोथ। लेट अस जो नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया है इसमें ग्रोथ सिनेरियो इक्विटेबल कर दो, और उसको मॉडल कर दिया यार, उसको इस पर जैक कर दिया। इससे क्या आया, इट वॉज वेरी स्टार्टलिंग यार। अभी जो है ना, इफ यू सी द लेफ्ट साइड, इस समय देश में 1.5 लाख किलोमीटर नेटवर्क है, और 1.5 लाख किलोमीटर नेटवर्क में, चलो एक पर्टिकुलर सेक्शन को 4 लेन को लेते हैं, इसमें 4 लेन 37,000 किलोमीटर है। इसमें अभी भी यू नो 1199 देखो, C1199 एंड C1199 एंड दिस, अभी भी इसमें ट्रैफिक तो 50 से कम है, यानी गुड 30। अगर आप इसमें देखें गुड 60% में ट्रैवल स्पीड तो इससे कम है। देन ये सेट कि इसको जो है ना, एवरी 5 ईयर्स वी मॉडल, एवरी 5 ईयर्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी, यू नो, एज ऑफ नाउ। इसी हिसाब से अगर ये देखा जाए तो जो एडिशनल रिक्वायरमेंट 2007 में इतने की होगी टोटल इसको। सो अब मैं इसको एक ग्राफ पे दिखाता हूँ। यू नो, दिस इज, यू सी द रिक्वायरमेंट, डिमांड सप्लाई जो रिक्वायरमेंट है, जो इन द कलर्स एडिशनल लेन रिक्वायर्ड। मैं इसको एग्जाम्पल से आपको लेट मी टेक यू थ्रू एग्जाम्पल। ये रहा मुंबई, ये रहा आगरा। मुंबई, यू नो, नासिक, इंदौर, ग्वालियर, आगरा, राइट। तो अभी आप देखेंगे तो यू नो, जो मुंबई या नासिक का अर्बन एरिया होगा उसमें थोड़ा कंजेशन है 2027 में। 2032 में आ जाइए। अब 2032 में आ गए तो आप देखिए कि क्या हुआ कि जो अर्बन एरिया, अर्बन पॉकेट्स कंजेशन था, अब थोड़ा कंजेशन आपका बढ़ने लगा, थोड़ा सा अब अपार्ट फ्रॉम मुंबई से इंदौर के बीच में। अब 2032 में आ गए, आप देखिए लाल बढ़ने लगी, 4 लेन रिक्वायरमेंट फर्दर या। लेकिन अभी भी देखिए इधर यहाँ
उतनी ज़रूरत नहीं है। इंदौर टू आगरा के बीच में ज़रूरत नहीं है। 2042 आ गए, अब देखिए इसमें फिर ये इतना और बढ़ गया, यानी हम लोग इंदौर से ग्वालियर की तरफ कंजेशन मूव कर गया। 2047 आ गए तो आप देखिए पूरा का पूरा चौक हो गया, थोड़ा थोड़ा देखिए। So this is how we modeled. So हाई स्पीड नेटवर्क कॉरिडोर पोस्ट भारतमाला, आप देखें मतलब NSDP और भारतमाला दोनों को मिला लें तो देखिए अगेन वी आर ट्राइंग टू से कि हार्ट ऑफ इंडिया एकदम गोल है, एकदम गोल है, एकदम कोई हाईवे वो नहीं है। इस ये बिफोर विजन, अब जब मैं इसको भारतमाला, जब इसको मैं विजन को अचीव कर लूँगा तो सिनेरियो क्या होगा, इसी इन टर्म्स ऑफ फिगर, फेज 1 फेज 2 दोनों में मुझे हाई स्पीड कॉरिडोर की रिक्वायरमेंट, वाई फेज 1 फेज 2, 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसको करने के लिए, इट्स अ ह्यूज सम। और दो इट्स ए विजन ऑफ 2047, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये कहा है कि इसको हम 2038 तक पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। विल नॉट वेट टिल 2047 यार, वी आर एन HAI, वी कंस्ट्रक्ट 40 किलोमीटर रोड पर डे, वी cannot कीप आवर प्लांट एंड इक्विपमेंट कीपिंग आइडल। वी सेड कि अगले 10 से 12 साल में इसको बना देंगे हम लोग, योर विजन विल अचीव 10 years बिफोर दैट। तो इसीलिए उसकी फेजिंग की है। फेज 1 इज इल गो अप टू 2028-29 मैक्स 30 एंड फेज 2 विल गो 38। सो अब ये पूरा आपने नेटवर्क देख लिया। अब नेटवर्क के अंदर आई जैसे टोल्ड यू कि उसके अंदर कॉरिडोर आने हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, पुणे बेंगलुरु कॉरिडोर, नासिक अहमदाबाद कॉरिडोर। कॉरिडोर आएगा कैसे, हाउ विल आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों ने इसके 3 क्राइटेरिया लगाए। एफिशिएंसी, अगर कोई कॉरिडोर ज़्यादा फ्रेट वॉल्यूम ले जाता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करता है, फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न इज गुड, देन विल गिव ए वेट ऑफ 60। इफ इट लिंक्स टू मेनी ट्रांसपोर्ट नोड, इकोनॉमिक नोड, ports, airports, industrial clusters, we'll give it a 16. Then again, sobering effect. If a node links tribal districts, aspirational districts, LW districts, we'll give it as. If the state has road length less, we'll give it as. So based on this corridors, we identify the corridors. एक बार हमने कॉरिडोर आइडेंटिफाई कर लिया, से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बनना है। सो व्हाट वी डू, इसको हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोजेक्ट्स। व्हाई वी डू दैट, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रैशनल फॉर दिस कि छोटे छोटे पैकेट्स बना देंगे तो देयर विल बी पैरेलली एंड फास्टर कंस्ट्रक्शन। वी डू वांट, अदरवाइज क्या होगा, दिल्ली मुंबई बड़े कॉरिडोर के बड़े ही कॉन्ट्रैक्टर, रिच विल बिकम रिचर, और कॉन्ट्रैक्टर आ ही नहीं पाएंगे। सो वी वांट टू डेवलप पूल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। एडिशनली इसका फायदा क्या है कि जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बढ़ जाएंगे तो मुझे टेंडर रिबेट डिस्काउंट NHAI को अच्छा मिलेगा। थर्ड, वी पैकेट इज दैट किसी की जो कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाता है, ही हैज़ टू टेक लॉट्स ऑफ क्लियरेंसेस फ्रॉम द स्टेट्स। तो अगर पैकेट प्रोजेक्ट इट स्पिल्स इनटू 2 states तो फिर उसको 2 राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो वी स्टेट की बाउंड्री पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। देन अगर से 2 हाईवे के बीच में है, हम लोग इंटरचेंज बनाते हैं, तो वी ट्राइड की ताकि अगर कुछ भी हो उस इंटरचेंज से इंटरचेंज के बीच में रोड खुल जाए हमारी। सो पैकेट इज लाइक दैट ऑल्सो। देन देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, लाइक टनल्स, लाइक ब्रिजेस। तो अगर बड़ा ब्रिज, बड़ा टनल आया तो उस पर हम लोग फिर उसको हम अलग पैकेट बना देते हैं, बिकॉज अदरवाइज अदर्स विल बी गेट डिलेड बिकॉज ऑफ दिस। जस्ट शो इज द एग्जाम्पल, क्लिक इट।
तो अगर आप देखें, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को बता रहा हूँ मैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को हमने 51 पार्सल्स में बांटा। तो आप देखें, ग्रीन से देखें, सो व्हाट हैपेंड, एक मुकुंदरा सेंचुरी आ रही थी, उसके नीचे, सेंचुरी के नीचे क्योंकि वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट होना था, नीचे टनल बनानी थी हमें, तो उसको हमने एकदम अलग एक पैक वो बना दिया। से नर्मदा रिवर पे एक मेजर ब्रिज बनना था, उसको अलग पैकेट बना दिया हमने। सिमिलरली जहाँ जहाँ स्टेट बाउंड्रीज आ रही हैं, स्टेट बाउंड्रीज को बचाते हुए अलग अलग पैकेट्स बना दिए हमने। नेशनल हाईवेज जहाँ जहाँ दूर दूर आ रही हैं, वहाँ नेशनल हाईवेज के बीच अलग पैकेट्स बना दिए। टिपिकली क्या होता है, व्हाट वी ट्राई टू डू, कि हमारा जो पैकेट हो 30 to 40 किलोमीटर की लेंथ में हो। 30 to 40 किलोमीटर लेंथ मीन्स अराउंड 13 to 1400 करोड़ का एक पैकेट बनता है। बिकॉज बहुत बड़ा पैकेट बना देंगे तो बिकॉज दे टेक मनी फ्रॉम द बैंक, बैंकेबिलिटी नहीं रह जाएगी उसकी, इतना बड़ा लोन बैंक नहीं देगा। सो इट मेक्स रैशनल एंड सेंस फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोग उसके प्रोजेक्ट की DPR बनाते हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके कई सारे फीचर्स हैं। सॉरी, उस पर आ जाएगा क्या, मेन उस पर आ जाएगा प्लीज़, इसे जस्ट सॉरी जरा प्रेजेंटेशन पे से चल जाए। आई एम सॉरी सर, ये आई एम नॉट अकस्टम टू इट, तो इससे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। आगे चलिए, मूव टू स्लाइड नंबर से come to slide number 25. Yeah, move please, move. Yes. अब ये आज आई सीइंग इट, आज आपका डिटेल सेशन है इसके बारे में कि इसको प्लानिंग करते हैं तो हम लोग PM गति शक्ति के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। PM गति शक्ति, व्हाट इट डज, इट टेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री अप टू 2021, हर इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री अपना अपना काम किया करती थी, कोई दूसरे से बात नहीं करता था। सो 2021 में DPIT ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें ये सारी मिनिस्ट्री क्रॉस सेक्टरल प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे कोई अलाइनमेंट से एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो आई प्रेजेंट इट बिफोर देम। वहाँ पर और प्लेयर्स, बीट रेलवेज, बीट एयरपोर्ट, बीट आवर इंडस्ट्री, सब लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। जैसे नो, ये जा रहा है तो यहाँ पर मेरा ये क्लस्टर आ रहा है, मेरा ये क्लस्टर आ रहा है, देन वी रीमॉडल आवर प्रोजेक्ट। सो देयर आर 4 बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन इट फ्रॉम वाई। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट इट डज, alignment. I'll take you through again example of Pune Bengaluru. So the slide यार। So अगर पुणे बेंगलुरु सेक्टर जब उसको सेक्शन को हम लोग डिजाइन कर रहे थे, सो इसे अलाइनमेंट हम लोग इस तरह बनाएंगे कि ये दिस अलाइनमेंट बिकॉज ऑफ गति शक्ति ओनली वी कुड केटर टू 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, 3 मेगा फूड पार्क्स, 4 इंडस्ट्री नोड, 8 pharmaceutical clusters, 55 SEZs, 7 textile clusters, 9 major railway stations, 3 airports, 2 aspirational districts. I mean, we could, because we relied on this PM Gati Shakti. Go back, please. And the second is common right of way. So, so the click it, please. क्लिक इज प्लीज सेकंड का राइट। यस, जनरली आपने देखा है रोड हमने बनाई, उसके बाद हमेशा कोई दूसरा खोदने आ जाता है उसके बाद। सो व्हाट वी डिड यूजिंग द एक्सट्रीम लेफ्ट पे राइट ऑफ वे, जब हम लोग एक्वायर कर रहे थे कि उसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमने यूटिलिटी के लिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए, इन सब के लिए स्पेस छोड़ दिया। बिकॉज ऑफ अहमदाबाद धुलोरा हम लोग बना रहे हैं, सो रेलवेज अप्रोच अस, जैसे कि भाई इतना हुआ तो इसके बगल में हमारे लिए लैंड एक्वायर कर दो। सो वी एक्वायर इन द सेम राइट ऑफ नाउ रेलवे विल बी रनिंग एंड द प्रोजेक्ट विल अब बाई से जून यू विल सी बोथ रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। गो बैक प्लीज। थर्ड इज इट हेल्प्स इन लैंड एक्विजिशन को। कैसे? सो द एग्जाम्पल प्लीज। तो जब पुणे बेंगलुरु हम लोग बना रहे थे तो हमने देखा कि यार 15 जगह नेशनल हाईवेज को विल कट इट, स्टेट हाईवे 25 लोकेशन विल क्रॉस इट,
रेलवे 6 जगह, हाई टेंशन लाइन इतनी जगह जाएगा, फॉरेस्ट एरिया. सो ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज ओनली आई गॉट टू नो. सो टाइमली हमने जो है ना उन डिपार्टमेंट्स में फॉर क्लियरेंसेज वी अप्लाइड फॉर क्लियरेंसेज इन डिपार्टमेंट. तो उससे हमें जो यू नो इट गिव्स अस इनिशियल एडवांटेज एंड लीड. नेक्स्ट प्लीज. थर्ड इज अगेन फोर्थ इज अलाइनमेंट इस तरह होना चाहिए कि इकोलॉजी को डैमेज मिनिमम हो. सो अगर हम लोग ओरिजिनली वी हैड प्लान्ड दिस रेड अलाइनमेंट, सो टू से रेड, तो इससे देखिए फॉरेस्ट एरिया से जा रहा था. व्हेन वी यूज दिस कंसेप्ट अलाइनमेंट चेंज किया, इससे फॉरेस्ट एरिया का जो लैंड एक्विजिशन था 20% रिड्यूस हो गया. इट्स डिफिकल्ट टू देश में सबसे पार पा सकते हो आप, फॉरेस्ट से पार नहीं पा सकते यार. सो आई मीन गो बैक प्लीज, go back please, go back please, come to main. सॉरी ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो जा रहा है. कम टू 26, कम टू स्लाइड 26. 4-5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, आई विल ओवर शूट इट बट आई विल फाइंड इट. तो अगर आप, हाँ नेक्स्ट. अच्छा अब या इसको मैं इसको प्लॉट उस पर प्लॉट करता हूँ, तो उस पर प्लॉट करता हूँ तो पोस्ट भारतमाला देयर बी हाई स्पीड कॉरिडोर ऑफ 11,000 किलोमीटर 14,000. पोस्ट विजन विल बी 50,000. और जो ट्रक था अभी जो 300 से 350 किलोमीटर पर डे चलता है वो 700 से 800 किलोमीटर पर डे चलेगा. सो दिस विल नेचुरली वी आर एमिंग कि 3 से 4% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज ए GDP विल बी रिड्यूस्ड. अब इसको मैं कंट्री के मैप पे प्लॉट कर देता हूँ. पोस्ट भारतमाला द सिनेरियो विल बी लाइक दिस. एवरेज 248 किलोमीटर्स लगेगा. देयर विल बी एरियाज यानी जहाँ पर लाइक नॉर्थ ईस्ट में एक भी हाई स्पीड कॉरिडोर नहीं होगा, लेह लद्दाख में एक भी हाई स्पीड कॉरिडोर नहीं होगा. पोस्ट विजन यू सी मोस्ट हैज कम इन रेड ग्रीन. ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश एंड लेह लद्दाख भी आर सो स्पेयर्स वहाँ हो, बट ओवरऑल देखें आपको लगभग से 50 to 100 किलोमीटर्स में आपको नेशनल हाईवे मिल जाएगा, वो हाई स्पीड कॉरिडोर मिल जाएगा. अगेन आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू व्हाट हाई स्पीड कॉरिडोर इज. जो एक्सप्रेस वे होती है उसकी डिजाइन स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि इतनी तेज स्पीड होती है तो जो लेन होती है लेन की होती है 3.75. एंड एक्सप्रेस वे इज एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आप जहाँ जहाँ इंटरचेंज होगा वहीं से चढ़ सकते हो, यू कैन नॉट. देन कम्स हाई स्पीड कॉरिडोर. हाई स्पीड कॉरिडोर में स्पीड इज 100 kilometer per hour and the lane width is 3.5. Again, high speed corridors are also access controlled. Then comes the national highways. Their speed is 80 kilometer per hour and lane width is 50. Sorry, lane width 3.5. और उसमें आप you can it's not access control. तो अब इसके बाद हम कहाँ होंगे? Post vision 2038. Come 2038, the same graph I have repeated. From bottom quartile to we'll go to one of the best quadrant. Broadly इससे मैं इसके बाद दूसरी चीज़ जो पाऊँगा इसको मैं समराइज़ करता हूँ. 2014 से 2023 अगर आप देखें तो यू विल गेट टू नो फिलॉसफी ऑल्सो. हम लोग इस डिकेड में क्या कर रहे थे, जो रोड की लेंथ बढ़ा रहे थे, रोड लीनियरली एलवेज ट्रांसवर्सली. अच्छा एक चीज़ और बताना है, अगर आप मुझसे पूछें कि दिस लेन में अगर आप इसको कन्वर्ट करें कि अगर इफ़ आई मेक ए रोड 1 किलोमीटर रोड इज अकिन टू 4.2, अगर लेन को जोड़ दिया जाए तो 4.2. वी डू नॉट 4 लेन 6 लेन 8 lane 2 lane. For us kilometer is we do not account for lanes. तो इस समय फिलॉसफी आप देखें, क्लियर फिलॉसफी क्या थी कि ये इसकी लेंथ बढ़ानी, राइट. लेकिन 2024 ऑनवर्ड्स नाउ द फिलॉसफी क्या होगी, हाई स्पीड कॉरिडोर्स बढ़ाने. हाई स्पीड में
the philosophy will be logistics efficiency. So now comes to interesting part कि अगर जब कोई रोड बनाते हैं तो कैसे सेलेक्ट करते हैं कि आई मीन व्हाट इज द रैशनल कि किस मोड पर जाए. देयर आर प्रोमिनेंटली देयर आर 3 मोड्स, ईपीसी, हाइब्रिड एन्युटी एंड बीओटी. ईपीसी वो हुआ इज द कंसेशनर. मैंने कहा भाई 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, सारा पैसा मैं दूंगा, रोड आप बनाओगे. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इज कि भाई आपका भी स्टेक पर है, 40% मैं दूंगा पैसा, 60% आप लगाओ और इस 60% को मैं आपको टॉलिंग करके वापस कर दूंगा. आई विल कम इन डिटेल. एंड थर्ड इज बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर. इट सेज कि भाई आप ही बनाओ और आप ही इसकी टॉलिंग करके खर्चा निकालो. सो ऑल थ्री मोड्स सब में रिस्क एपेटाइट अलग अलग है. तो अगर आप देखें प्री कंस्ट्रक्शन रिस्क मीन्स लैंड एक्विजिशन. लैंड सोवरेन गवर्नमेंट ही एक्वायर कर सकती है. प्राइवेट को आप सोचें कि कोई कंसेसर को कह दे, कॉन्ट्रैक्टर को कह दे कि तुम जाके 40 किलोमीटर लैंड ले लो,